Hi Sanya, hi Varun. I'm Rohit Vats from Z News, and so the entire concept of acting through voice, and also with such a subject which is like not being talked about easily. How was the feeling? How did you go for it? Am I going first? Okay. Rohit, it was definitely a refreshing take for me as an actor. Both Varun and I have done this for the first time. We recorded this last year during the lockdown when all of us were homebound, घर पे बैठे हुए थे and nobody was allowed to step out of the house. That's when we recorded this series. And as an actor, it was refreshing, also satisfying to perform. ऑडियो है बट एक्टिंग ही है एक तरीके से you have to perform for the for your dialogues to sound a certain way. So definitely I'm so glad that I got to work with Audible on Sasural Wonderful, sorry, fool. And I'm quite positive when the audience and our fans will listen to this, they will really like it. And this is going to be a hit. And soon Amazon will be like, the show is such a hit, we should make a film on it. And they'll recast us for the film. That's what I'm hoping. That will definitely happen. Varun, what about you? Rohit, because it's a new medium, it's a very different medium. You're acting through your voice modulations and different things. And I think सबसे खूबसूरत चीज अगर मैं एक लाइन में इसको पूरा सम अप कर सकूं कि आप अपने इस मीडियम की सबसे खूबसूरती की बात यह है कि जो विजुअल्स है वो ऑडियंस अपने हिसाब से सेट करेगी जब वो सुनेगी। जब वो आंखें बंद करके इसको सुनेगी तो पूरे जो विजुअल्स हैं हर इंसान अपने हिसाब से अपने मुताबिक उस विजुअल्स को इमेजिन कर सकता है और सेटअप कर सकता है। आई थिंक ऑडियो पॉडकास्ट की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है मुझे। And also like you both have been experimenting with your characters. Like last 2-3 साल में जो भी फिल्में आपने की हैं, वो काफी अगर टोनली सेम भी होंगी तो भी काफी एक्सपेरिमेंटेशन आप लोगों के साइड से हुई है हर हर पिक्चर में। तो Hmm. मतलब लाइक दिस इज लाइक टेकिंग इट टू अनदर अनदर लेवल, लाइक क्लाइंबिंग अनदर स्टेयर, Hmm. right? So I was just wondering that what would happen inside the studio when you are actually saying those dialogues, and like there is just a mic, and like it's a soundproof room. But Yeah. what did you imagine? Like how did you go about it? As I said, we were at home when we recorded this. So, I actually converted my sister's room into the recording studio. And I have pictures. Maybe I should post it once the trailer is out. Uh, and it's, as Varun said, uh, it's the same for the listeners and the performers. Everybody has their own visualization when they're performing. और वो बहुत स्पेशल था एंड नाउ दैट वरुण हैज सेड आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दिस हैपेंस व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक और यू आर लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक कि आपके माइंड में अलग ही पिक्चर चल रही होती है यू हैव योर ओन कैरेक्टर्स यू नो हाउ योर कैरेक्टर्स लुक लाइक एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑडियो एज अ मीडियम तो सेट पर होना एक अलग फील होती है यू आर बीइंग डायरेक्टेड यू हैव faces that you can see but in this one you have to very carefully listen to your co-actors because you can't miss that अगर आप अच्छे listener नहीं हो तो मुझे लगता है मुश्किल हो सकती है when you're recording such a series. एंड ऑल्सो वरुण के ऐसे मतलब अकेले भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बट हंसी तो आ ही जाती होगी बीच में कि अरे ये क्या सिचुएशन। बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं रोहित भाई कि बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं क्योंकि कई बार वो तो मतलब आप कुछ कर रहे हो आप किसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो और कई बार एक अच्छा टेक में भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर आपके वो हंसी आ जाए या फिर आपका रिएक्शन आ जाए या फिर आपका कुछ भी आ जाए ठीक आ जाए खांसी आ जाए कुछ भी आ जाए तो पूरा का पूरा वो चीज आपकी वो हो जाती है और आपको लगता है अरे यार क्यों ऐसे हो सके कुछ है। बट इसमें खूबसूरती की बात यह है कि इसमें सिर्फ आप अकेले खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको चीखना है आपको खांसीना है और आपको हंसीना है। जब आप ऑडियो विजुअल में होते हो तो उसमें किसी और को भी हुआ तब भी दोबारा करना पड़ेगा तो एडवांटेज है यहाँ पे। Yeah. और अपने शो में इतना ह्यूमर है ना इनफैक्ट हम एक सीन करते थे और सारे एक्टर साथ में के हंसने भी लग जाते थे पूरे रिकॉर्ड करने के बाद. और ऑल्सो सब्जेक्ट भी वैसा है ना कि लाइक ये एक फैमिली है जो
सेक्स क्लिनिक चलाती है और वो लोग बहुत ओपन है इस चीज के बारे में, एंड assume that the girl doesn't know what she is getting into, Yeah. She right? has no idea, and she's a prude too. So what will happen in such a situation if it actually happens? Like suppose it happens with you. I'm not a prude. I'll be definite. I'll be taking part in those conversations. But if I talk about Ashima, then she is she reflects our society. You know, there are people who don't want to talk about it, or they're shy to really have a conversation on a topic like this. तो बड़ा अच्छे से वो रिफ्लेक्ट करती है अपनी सोसाइटी को. अच्छा वरुण, अगर ये रोल रिवर्सल हो जाए और आप आशिमा के सिचुएशन में प्रशांत आ जाए तो क्या होगा? भाई अगर मैं आशिमा होता मैं तो शॉक नहीं हो रहा होता क्या रहा है ये परिवार में किस तरह से हो रही है कुछ है. बट आई थिंक एक अच्छी बात है आशिमा की, जो सानिया अगर करती है आशिमा की, कि वो जाके अपने दिल की भड़ास सिर्फ प्रशांत को निकालती है. आई थिंक अगर मैं कर रहा होता तो मैं पूरे परिवार पे निकाल देता. ऑल्सो लाइक ऐसा सब्जेक्ट हमने ज्यादा देखा नहीं है, इस तरह के सब्जेक्ट पर कुछ या सुना नहीं है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, वर देयर एनी लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, एनी रेफरेंस पॉइंट्स? हमारे सिनेमा में तो बड़े सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं इस टॉपिक को लेके, और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं लोग. पर मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत ही सॉलिड थी फॉर ऑडिबल. ऑफस्पिन डायरेक्टेड दिस एंड इट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय बोधी ट्री. तो वो मटेरियल ही काफी था फॉर अस, फॉर एटलीस्ट फॉर मी एज एन एक्टर, टू रियली नो माय कैरेक्टर एंड द होल सिनेरियो वेल, क्योंकि इट्स आल्सो वेरी वेल रिटन शो. सो आप जब सुनेंगे और जब बाकी लोग भी, हमारे फैंस और हमारी ऑडियंस ही सुनेगी, उनको भी समझ आएगा why we say that it's easy, or it's very easy to visualize, because these are characters that you might have seen around you. मतलब ऐसे लोग होंगे जो आपकी फैमिली में हैं, ऐसे लोग हैं जो आशिमा जैसी कोई लड़की होगी, जब ये सुन रही होगी तो उसको भी लग रहा होगा कि हाँ, I can relate to her, I will also not go and talk to anyone about this, you know. So that's the beauty of it. It's very well written and very well directed audio series. ऑल्सो वरुण, ये मतलब कॉमेडी ना काफी सीरियस थीम वाली कॉमेडी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है? डिफिकल्ट होती है रोहित भाई, मुझे ऐसा लगता है. बट ऑफ कोर्स यस, इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आप उसको ह्यूमर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको एंटरटेनिंग बनाते हैं, वो चीज की चैलेंज है जो आई थिंक कि बहुत खूबसूरती के साथ हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ग्राफ डाउन करा है. तो चैलेंज है ही है, वो 100% चैलेंज है. लेकिन एट द सेम टाइम वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छे से पहली लिखावट में इतने खूबसूरती से इम्प्लीमेंट हुए हैं. हमारे को एज एन एक्टर वो चीज करने में आसानी होगी क्योंकि आपका बेस ही बड़ा सुलझा हुआ था. And also like in films तो sometimes we can, even if this is situation comedy, हम थोड़ा physically comedy करके निकल सकते हैं उसमें से. लेकिन जब when it is only about voice, then it's very difficult. You can't do that. एब्सोल्युटली, मतलब वो है ही है भाई. आई थिंक वही जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, आवाज का खेल है इसमें तो पूरा कि, और वही कि आपको 20 मिनट का अगर एक शो का पहला एपिसोड, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम लिमिट क्या है, बट आई एम अगर 18 मिनट 20 मिनट 22 मिनट जितना भी होगा, उसके अंदर सिर्फ आवाज के जरिए आप किसी ऑडियंस को हुक करके रखना है, तो वो मुश्किल काम तो है ही. तो कि आपके पास विजुअल डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी सामने चीजें करने के लिए, तो आपको उस पर हुक करके रखना है, तो मुश्किल तो है ही. एंड आई रियली होप एंड आई एम होपिंग कि लोग जब ये ससुराल वंडरफुल सुनेंगे तो दे विल गेट हुक्ड, बिकॉज इट इज अ वेरी फन शो. इट इज अ वेरी एंटरटेनिंग एंड अ फन शो, एंड आई एम श्योर दे विल गेट हुक्ड ऑन टू इट एंड दे विल हैव देयर ओन इमेजिनेशन. They will definitely have that. And क्योंकि मेरे को सुन के भी ना काफी वो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अरे मतलब ऐसा अगर मैं नाउ आई हैव स्टार्टेड इमेजिनिंग अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा. So also Sania, any experiences from recording this if you want to share, like when we were shooting and recording and suddenly you realized कि यार ये काफी wide और weird bizarre भी हो जाता है कई बार. It's not bizarre, it's definitely dramatic.
and humorous. तो एक मतलब I was recording this when I was in Delhi at my home. तो मुझे ये याद है कि वो जितना रिकॉर्डिंग का पीरियड, आई थिंक 3 घंटे हम सुबह रिकॉर्ड करते थे, फिर ब्रेक लेकर 3 घंटे शाम को करते थे. वो 3 घंटे मेरे घर में किसी को अलाउड नहीं था टू मूव और टू ब्रीथ. तो मेरे इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग ना शोर मचा सकते हो एक कमरे में. माय होल फैमिली वाज सो सपोर्टिव, दे सो नाइस. एक कमरे में बैठे होते थे एंड दे ऑल यूज्ड टू बी लॉक्ड इन दैट वन रूम. लेकिन मतलब मैं तो कॉमेडी करूंगी, आप सब सीरियस रहो. नहीं, रिकॉर्डिंग में आवाज आ जाती है ना, मम्मी पीछे चिल्ला रही होंगी बेटा खाना खाया और हाँ मैं सीन रिकॉर्ड कर रही हूँ कोई सीरियस. एनी एक्सपीरियंसेस यू वांट टू शेयर वरुण? ठीक है, जिनके घर पे अलाउड नहीं होता, मेरे घर पे कुकर की सीटी नहीं बजती थी. सेम. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.